Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the chapter India's foreign policy, and under this chapter, we have done Indo-China relationship and Indo-US relationship. As I told you earlier, also, uh, all the foreign relations of India has been put under this chapter according to the revised syllabus. So now you have to read Indo-China relationship, Indo-US relationship, Indo-USSR, Indo-Russia relationship, and Indo-Israel relationship under this chapter. Okay. Earlier, all these relations like Indo-US, Indo-Russia, they were scattered, but now they have been put under this chapter only. So we have done Indo-US, and now today we will do some in Indo-Russia relationship. Okay. So we all know that we have a very special relationship with USSR, and in 1991 the disintegration of USSR takes place. After that, we have maintained a good relationship with all the post-communist countries, but our special relationship is still with Russia. It's a very important aspect. The relationship of India with Russia is an important aspect of India's foreign policy, and we see that we have a very a good history of relationship with Russia as USSR. जब रसिया USSR था तो हमारे उसके साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन थे, ट्रस्ट था हमारे बीच में, पर म्यूचुअल ट्रस्ट पे बेस था, कॉमन इंटरेस्ट थे हमारे, और people were also in favor of the good relationship with Russia. And we see like Raj Kapoor, who was a renowned actor of Bollywood. If we start from Raj Kapoor till Amitabh Bachchan, these are the household names in Russia and other communist countries also. Matlab, the relationship is so strong. That is why it is called that there was support of people also for this relationship. So connectivity is there between India and Russia, and it's a very positive sign. Now we see that Russia and India, अगर political terms में देखें तो the most important aspect is the multipolar world, जो कि दोनों ही visualize करते हैं as multipolar वर्ल्ड को. बिकॉज आज के समय में हमने जैसे बुक 1 में हमने न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में दोनों ही कंट्री को पढ़ा, इंडिया भी है और रसिया भी है. तो दोनों ही जो कंट्री हैं दे बोथ शेयर अ विज़न ऑफ मल्टी पोलर वर्ल्ड. मल्टी वर्ल्ड का मतलब ये होता है जहाँ पर पावर का न एक पोल नहीं है, दो पोल नहीं है, बल्कि कई सारे पोल्स हैं, यानी कि कई सारे पावरफुल कंट्रीज एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना. दिस इज को एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम, है ना. दिस इज मल्टी पोलर वर्ल्ड, जहाँ पर कई सारे पावर सेंटर्स ऑफ पावर एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना. कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है वो भी इसके अंदर आती है. मल्टीपोलर वर्ल्ड का जो एक एलिमेंट है कलेक्टिव सिक्योरिटी है, जिसका ये मतलब होता है कि अटैक ऑन एनी कंट्री इज रिगार्डेड एज अ थ्रेट टू ऑल द कंट्रीज एंड रिक्वायर्स अ collective response. So collective security is also one of the important element of multipolar world.
देन मल्टीपोलर वर्ल्ड रीजनलिज्म पर भी फोकस करता है, एक पर्टिकुलर रीजन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। एंड जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसका सेटलमेंट नेगोशिएशन से होना चाहिए, ये भी मल्टीपोलर वर्ल्ड का जो विज़न है इंडिया और रसिया का, उसमें ये भी इंक्लूडेड है। एंड ऑल द कंट्रीज मस्ट अडॉप्ट एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। So these are the elements of multipolar world, which is a vision of India and Russia. So we see that between India and Russia 80 bilateral agreements have been signed. It means that we have a very strong relationship, है ना? So we are also we can also see that इंडिया और रसिया के बीच में स्ट्रेटजिक अग्रीमेंट्स भी हुए हैं। 2001 में इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में स्ट्रेटजिक अग्रीमेंट्स भी हुए हैं। सो व्हाट वी सी कि इंडिया जो है इट इज़ रियली गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप विद रसिया, बिकॉज हमारे सामने बहुत सारी लाइक एक तो एनर्जी सप्लाई में हमें हेल्प मिलेगी रसिया से, बिकॉज रसिया के पास एनर्जी का बहुत ज़्यादा सफिशिएंट रिज़र्व है, तो एनर्जी सप्लाई के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन कश्मीर इशू पे भी हमें इससे सपोर्ट मिलेगा। इंटरनेशनल टेररिज्म को रोकने के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो हम इसके साथ शेयर कर सकते हैं, है ना? तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिसके कारण रसिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर अगर हम सेंट्रल एशिया तक पहुंचना चाहते हैं तो कैसे पहुंचेंगे? रसिया के थ्रू ही पहुंचेंगे। तो इन सब एस्पेक्ट में रसिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना? फिर चाइना के साथ हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है, चाइना के साथ हम वॉर भी हो चुका है और आगे भी बॉर्डर इशूज़ डेवलप तब आते रहते हैं, हमारे बीच का रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तो ऐसी कंडीशन में रसिया जो है वो के साथ अगर हम अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हैं तो इससे हमारा चाइना के साथ रिलेशन भी बैलेंस होगा। चाइना को ये समझ में आएगा कि हाँ रसिया इंडिया के साथ है तो वो हमें हल्के में नहीं लेगा। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो दीज आर द बेनिफिट विच इंडिया विल गेट बाय हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विद रसिया। इसी तरह से अगर हम देखें तो रसिया को भी इंडिया से फ़ायदा है। दोनों ही कंट्री म्यूचुअल बेनिफिट है ना? रसिया को कहाँ फ़ायदा हो रहा है? क्योंकि हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट है रसिया के लिए। रसिया के जो आर्म्स हैं उनका जो मार्केट है इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट। सो इंडिया में दूसरी बात ये है कि ऑयल इम्पोर्टिंग कंट्री है। हमारे यहाँ ऑयल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है लेकिन ऑयल रिज़र्व नहीं है, तो हम ऑयल इम्पोर्ट करते हैं और रसिया हमें ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज़ में रसिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो रसिया ने हमें कई बार जब भी हमारे यहाँ ऑयल क्राइसिस हुआ तो हमें उसने हेल्प भी किया है ना? तो इंडिया अपने एनर्जी इंपोर्ट्स को भी बढ़ाना चाहता है रसिया से ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी इंपोर्ट कर सके, है ना? फिर जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं लाइक कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इनके साथ जो रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव करने के लिए लाइक इंडिया इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इन कंट्रीज़ में, सेंट्रल एशिया कंट्री में ऑयल फील्ड्स में। तो कैसे करेगा? रसिया के थ्रू ही वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। तो रसिया जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स में भी रसिया ने हमें हेल्प किया है। रसिया ने हमें स्पेस इंडस्ट्री में भी हेल्प किया है। क्रायोजेनिक रॉकेट जिसकी इंडिया को बहुत ज़्यादा नीड थी, तो वो रॉकेट हमें रसिया ने अवेलेबल कराया, जिससे कि हमने स्पेस इंडस्ट्री में हमने काफ़ी कुछ अचीव किया है। तो दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं वो हम काफ़ी साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स पे कोलैबोरेट भी कर रहे हैं। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट वी कैन से एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो रशिया relationship. And now we see the next relation, that is Indo-Israel relationship. Here you must understand that this Indo-Israel relationship is not given in the textbook. It is in the revised syllabus.
reference material which is given under the revised syllabus. Okay, so now we will do Indo-Israel relationship. So what we find that you have read about Israel as a new center of power, है ना, in book 1 that chapter new center of power में आपने Israel को पढ़ा, and you know that Israel is the only non-Muslim country of West Asia. And what we find that if we see the relationship between India and Israel, there was no major development in this regard in the last 45 years, you can say, because जो हमारे यहाँ इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं. अगर हम उसको एनालाइज करें तो ये समझ में आता है कि जब कांग्रेस जब तक पावर में रही 96 कह सकते हैं, 96 तक कांग्रेस जो थे वो पावर में रहती है ना. और यही है वो 45 ईयर्स. 1945 में आज़ादी मिली, 47 में, और 47 से अगर हम आगे आने वाले करीब 45-50 ईयर्स तक हमारे रिलेशन जो है वो इसराइल के साथ नहीं था. इसके पीछे रीज़न ये माना जाता है कि इसराइल जो है, जब हमने इसराइल न्यू सेंटर ऑफ पावर में पढ़ा था तो हमने देखा था कि इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट पैलेस्टाइन के साथ है ना, जो अरब कंट्रीज़ के साथ उसका काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है. टेरिटरी को क्लेम करते हैं दोनों, और इसराइल पैलेस्टाइन वॉर्स भी हो चुके हैं. तो ऐसे में जो कांग्रेस रूल था इंडिया का, उसने मुस्लिम्स we can say in order to appease the Muslim voters, India always supported the cause of the Arabs in this Indo-Palestine Israel-Palestine conflict, है ना. इंडिया ने हमेशा मुस्लिम्स जो अरब मुस्लिम्स थे उनको ही सपोर्ट किया, और इसलिए इसराइल के साथ हमारा रिलेशन बिल्कुल भी नहीं था. लेकिन जब आगे चल के कांग्रेस का रूल कमज़ोर पड़ने लगता है और बीजेपी पावर में आना स्टार्ट होती है, तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें चेंज होना शुरू होता है, क्योंकि हमें ये समझ में आता है कि दोनों कंट्री के बीच में स्ट्रॉन्ग टाइज़ हो सकते हैं. बिकॉज़ अगर हम देखें तो हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज़ हमारे बीच में रहे हैं पुराने समय से, और इसलिए उस रिलेशन को फिर से मजबूत किया जा सकता है, ऐसा समझा जाने लगा. और 1992 में पहली बार डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो फॉर्मली डेवलप हुआ इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जबकि इज़राइल एम्बेसी जो इज़राइली एम्बेसी इंडिया में ओपन होता है 1992 में. ठीक है, तो दिस इज़ द वी कैन से, अगर इंडो इज़राइल रिलेशनशिप को देखना है तो 1992 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, बिकॉज इन दिस ईयर नाउ व्हाट हैपेंड, ओपनिंग अप ऑफ opening up of Israeli embassy in India. और इसके बाद इसी के बाद फॉर्मल रिलेशंस जो है वो स्टार्ट होता है. लेकिन अगर हम देखें तो ये रिलेशन जो दोनों कंट्रीज़ के बीच था वो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं हो पाया. वो तभी मोमेंटम पकड़ता है जबकि बीजेपी के लीडरशिप में एनडीए की गवर्नमेंट फॉर्म होती है 1996 एंड 1998 में, है ना. तो उसी समय से ये जो रिलेशन है इंडिया और इज़राइल का वो इम्पॉर्टेंट होना स्टार्ट होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था. ठीक है, एंड इन दोनों कंट्री के बीच के रिलेशन अभी और भी ज़्यादा वी कैन से कि इम्पॉर्टेंट हो गए हैं
जबकि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है उनके विजिट के बाद, लाइक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो इसराइल गए थे 2017 में. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट विजिट ऑफ Narendra Modi to Israel. टू 2017 में इसराइल में वो जाते हैं, विज़िट करते हैं. और उसके बाद 2018 में वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ही ऑल्सो केम टू इंडिया. तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट विजिट ऑफ he visited in 2018. These are the important events, है ना. और ये जो विज़िट है इससे दोनों के बीच के रिलेशन और भी मजबूत हुए हैं और कई सारे फील्ड्स में हम आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं, लाइक कल्चरल एक्सचेंज है, सिक्योरिटी एंड डिफेंस है, टेररिज्म को रोकने के लिए, देन स्पेस रिसर्च में, वाटर और एनर्जी में, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में. ये सारे ऐसे फील्ड हैं जिसमें हमने आपस में कोऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया है. तो दिस इज़ अबाउट योर इंडो इसराइल रिलेशनशिप. एंड नाउ one more topic is left in this chapter, and that is India's nuclear policy. So we will be doing that, India's nuclear policy. Okay, so now we will be doing India's nuclear policy. It is given in your textbook only, है ना. ये आपके ओरिजिनल टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर 4 है उसमें ये है, ठीक है. So what we see that India's nuclear policy is an important element in India's foreign policy, and we see that Nehru was the prime minister, the foreign minister, and he believed in science and technology for rapid economic growth of the country. And we have adopted this rapid industrialization in the second 5-year plan, and accordingly we opted for nuclear program. These nuclear program initiated in the late 1940s, and the guide was Homi Jahangir Bhabha, है ना. You must have heard his name. इंडिया में जो न्यूक्लियर एनर्जी का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ उसको स्टार्ट करने वाले होमी जहांगीर भाभा ही थे. भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पार्क आज भी हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है. तो भाभा ने इसको इनिशिएट किया 1940s में. ओके, और 1940s में जब हमने इसको स्टार्ट किया तो हम यही चाहते थे, हमारा यही पर्पस था कि एटॉमिक एनर्जी को पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ किया जाए, बिकॉज न्यूक्लियर एनर्जी जो क्रिएट होती है
उससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर पावर से वो बहुत ज़्यादा होती है, और इसके इंस्टॉल करने में खर्च होता है। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं इंस्टॉल करना कॉस्टली होता है, लेकिन एक बार जब इंस्टॉल हो जाता है तो फिर जो पावर जनरेट होता है वो काफ़ी चीप पड़ता है। तो ये हमारे सामने जो चैलेंजेस थे कि इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना है, जिसके लिए न्यूक्लियर एनर्जी वाज वेरी मच रिक्वायर्ड। एंड हमने इसी पर्पस से, पीसफुल पर्पस से ही एटॉमिक एनर्जी को जनरेट करना हम चाहते थे। अगर उस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे, उनको ही वॉज अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स, और इसलिए कभी भी हमने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ नहीं किया। एंड he also pleaded with the superpowers for comprehensive nuclear disarmament, because he was not a supporter of a nuclear weapon, and he wanted that there should be complete nuclear disarmament. But what we find that nuclear disarmament तो हुआ, but that was not complete. NPT जो आया 1967 में, वो that was based on the principle of disparity, inequality. So कभी भी ये बढ़ता ही गया। अगर हम देखें तो जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो बढ़ता ही गया, है ना। और चाइना ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट 1964 में किया था। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। इस यहाँ पर हम न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, तो चाइना ने कब कंडक्ट किया? चाइना conducted nuclear test in 1964। ये अक्टूबर था, 1964 के अक्टूबर में चाइना ने कर लिया, न्यूक्लियर टेस्ट किया। और इसी समय क्या हुआ, 64 में ये किए, और उसके बाद 67 से NPT स्टार्ट हो गया, जिसमें ये कहा गया कि जिन्होंने भी 1 जनवरी 1967 के पहले जिन्होंने भी ये कर लिया है न्यूक्लियर टेस्ट, बस उनके पास ही न्यूक्लियर वेपन हो सकते हैं, और किसी भी कंट्री को न्यूक्लियर वेपन रखने का अधिकार नहीं है ना। सो ये कंट्रीज़ US, USSR, UK, फ्रांस एंड चाइना थे, है ना। ये पांचों जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स थे। इन्होंने पूरी दुनिया पे अपने NPT को इम्पोज किया, बट इंडिया ने NPT पर साइन नहीं किया। क्यों नहीं साइन किया? बिकॉज इंडिया इज़ ऑफ द व्यू दैट दिस NPT इज़ डिस्क्रिमिनेटरी and it is based on inequality. It divides the world into two parts, nuclear haves and nuclear have-nots, and India is not ready to accept this decision. And then we find that India conducted its first nuclear test मई 1974 में। हमने राजस्थान में पोखरण जगह का नाम है राजस्थान के अंदर, वहाँ पर हमने सबसे पहला अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया। और इस न्यूक्लियर टेस्ट में हमने यही कहा कि ये पीसफुल एक्सप्लोजन है। हमने ये न्यूक्लियर टेस्ट पीसफुल पर्पस से, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने के लिए किया है, ठीक है। अब ये जो टाइम था, जबकि 1974 में जब न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पीरियड था, क्योंकि इस समय 1973 में, एक साल पहले अरब इजराइल वॉर हुआ था, और इस अरब इजराइल वॉर से ऑयल का जो सप्लाई बहुत बुरी तरह बैडली अफेक्टेड हुआ था, और ऑयल की प्राइसेस में बहुत हाइक हो गया था। तो पूरे की पूरे अगर देखा जाए तो इंडिया जैसी कंट्री के लिए ये बहुत बड़े प्रॉब्लम का समय था।
क्योंकि जैसे ही ऑयल की प्राइसेस, जब गवर्नमेंट को ऑयल हाई प्राइस पे इंपोर्ट करना पड़ेगा तो क्या होगा, कंट्री में न सिर्फ ऑयल की प्राइस बढ़ती बल्कि ऑयल के प्राइस बढ़ने के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज बढ़ जाते हैं, सारे गुड्स के प्राइस जो है वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। तो ये समय था जबकि अभी आप पढ़ोगे इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में, 1970s में प्राइस राइज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई इन्फ्लेशन की, है ना। और इसके कारण पूरी कंट्री में एजिटेशन मूवमेंट, पीपल्स मूवमेंट स्टार्ट हो गए प्राइस राइज के अगेंस्ट में, है ना। रेलवे स्ट्राइक हुआ, तो ये टाइम बहुत ही परेशानियों वाला था, ठीक है। और अगर हम देखें तो जो हमारे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके बीच में एक ब्रॉड एग्रीमेंट है ऑन द इश्यूज ऑफ लाइक जो हम न्यूक्लियर पॉलिसी की बात कर रहे हैं, इसको लेकर के जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके बीच में एक ब्रॉडर एग्रीमेंट बना हुआ है ना। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारी कंट्री कई सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रही थी। अगर 62 से 72 के बीच का टाइम देखें तो हमने 3 वॉर, पूरे फुल फ्लेजेड 3 वॉर्स वी हैव फेस्ड, है ना। और इसलिए पार्टीज़ बदलती रही लेकिन फॉरेन पॉलिसी जो है वो हमारा एक ही जैसा रहा है, उसको पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं रहा। यहाँ पर कुछ और भी आपको एडिशन है, लाइक अगर हम देखें तो सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट भी हमने किया। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हमने 1974 में किया था। द पर्पस वाज पीसफुल, इन ऑर्डर टू जनरेट न्यूक्लियर एनर्जी वी हैव डन दिस न्यूक्लियर टेस्ट, बट इट वाज ओनली फॉर द वर्ल्ड, दुनिया को बताने के लिए हमने ये रीज़न कहा था। एक्चुअली ये न्यूक्लियर वेपन के लिए ये टेस्ट हुआ था, ठीक है। और जो हमने सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ हमारा, वो कब हुआ, नाइनटीन 98 में हमने सेकेंड न्यूक्लियर, ये भी मई में ही हुआ था, राजस्थान में पोखरण में ही हुआ था, मई में बुद्ध पूर्णिमा के दिन। तो वो भी बुद्ध पूर्णिमा को हुआ था, दोनों बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। और जब इसमें यहाँ पर ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया 1998 में, तो अब जो दोबारा टेस्ट किया तो हमने दुनिया को ये नहीं बताया कि हम पीसफुल पर्पस से टेस्ट करें, बल्कि हमने दुनिया को अब ये बताया कि हम अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को दिखाना चाहते हैं, हम न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री बनना चाहते हैं, और इसीलिए हमने ये टेस्ट किया। यानी कि हमने न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने के लिए ये टेस्ट किया है। और जब इंडिया ने टेस्ट किया, ये था मई, यहाँ भी मई ही है ना। इंडिया ने टेस्ट किया और इसी समय पाकिस्तान ने भी टेस्ट कर लिया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जबकि काफ़ी कंफ्यूजन आता है बच्चों को। पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन अक्टूबर 1998। तो पाकिस्तान के टेस्ट करने के बाद ये काफ़ी सिचुएशन जो है वो ख़राब हो गई, क्योंकि साउथ एशिया में इंडिया पाकिस्तान का जो बैड रिलेशनशिप है वो एक बहुत ही बड़ा बहुत ही सेंसिटिव इशू है। और अब ये दुनिया को समझ में आया कि ये दोनों कंट्री जिनके बीच में इतना पहले ही 3 बारी वॉर हो चुके हैं, और अब वो न्यूक्लियर कैपेबल हो गए दोनों के दोनों कंट्री, तो पूरी की पूरी दुनिया के जो, अगर हम कहें कि वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो गया। और इस कारण से दोनों ही कंट्री पे, इंडिया पे भी और पाकिस्तान पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे यूएन ने, इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, बिकॉज दोनों ने एनपीटी पर साइन ना करते, इंडिया ने तो एनपीटी पे साइन नहीं किया, सीटीबीटी पे साइन नहीं किया, और न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, और पीछे से पाकिस्तान भी कर रहा है। तो इस कारण से दोनों ही कंट्री पे इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। सो दिस इज़ योर न्यूक्लियर पॉलिसी। इसमें एक और टॉपिक मतलब बहुत छोटा सा है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी का जो ओपिनियन है रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन, वो आपका एडिशन हुआ है।
आप अपने रिवाइज सिलेबस में देखोगे एक टॉपिक है इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम। उसमें सिर्फ यही है कि लाइक इंडिया इज़ अ पीस लविंग कंट्री एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडिया ऑलवेज बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज़। हम लोग कभी भी इसको फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे, पहली बार हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। मतलब हमने न्यूक्लियर वेपन को डेवलप कर लिया है, वी आर अ न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री, बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ इट फर्स्ट। अगर कोई दूसरी कंट्री यूज़ करेगी तभी हम इसको यूज़ करेंगे। तो हमारा जो स्टैंड अभी तक था दैट वाज ऑफ नो फर्स्ट यूज़। बट नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने और जब उन्होंने कमान संभाली तो उन्होंने इसमें चेंज लाया। ही मेड इट क्लियर दैट द पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज़ कैन बी रिव्यूड। हम इसको रिव्यू कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमने एक बार कह दिया कि हम नो फर्स्ट यूज़ करेंगे तो हम नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको फिर से इस पर हम विचार कर सकते हैं और हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी की ये डिमांड होगी तो हम नो फर्स्ट यूज़ की जो बात है उसको बदल भी सकते हैं, यानी हम फर्स्ट यूज़ कर भी सकते हैं अगर हमारी नेशनल सिक्योरिटी की ये डिमांड होगी तो। ठीक है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। क्या चेंज आया है नो फर्स्ट यूज़ के स्टैंस में इंडिया के। एंड देन वन मोर पॉइंट इज़ देयर कि इंडिया is committed to ensuring its membership in the Nuclear Suppliers Group (NSG), and India is still India has not signed on CTBT and NPT because it opposes unequal treatment. Okay, so this is all for today, and now we have completed this chapter, and in the next class we will start a new chapter.